Assalamu alaikum dear students. My name is Dr. Imran and you're watching Dr. Imran's anatomy lecture for paramedics, and don't forget to subscribe my channel. And today lecture we will discuss coronavirus, identification of coronavirus, types of coronavirus, generations of coronavirus. Then we will discuss the family of coronavirus, then symptoms and precautions. So here we go. First of all, identification of coronavirus. Coronavirus was first discovered by Tyrrell and Bynock in 1965, founded in human embryonic tracheal organ. Coronavirus belongs to the group of RNA viruses. The sources of coronaviruses are animals including bats, camel and cattle. Expert says that the SARS-CoV-2 originate in bats. SARS means severe acute respiratory syndrome. So if we discuss here the types of coronavirus, coronavirus has two types. First one is called SARS and second one is called MERS. SARS means severe acute respiratory syndrome and MERS means Middle East respiratory syndrome, because first of all it was originated in Middle East area. So that's why we call this MERS, means Middle East respiratory syndrome. Now we discuss the generation of coronavirus. Coronavirus have four generations. The first one is called alpha coronavirus, second one is called beta coronavirus, third one is called gamma coronavirus, and fourth one is called delta coronavirus. So the first two, alpha and beta coronavirus, infect mammals, and third and fourth, gamma and delta coronavirus, infects birds. The first two infects mammals and second two infects birds. So if we discuss the size and weight of coronavirus, the size of coronavirus is 120 diameter, whereas if we discuss the weight of coronavirus is about 40,000 kDa, kilodalton. So after discussing all these things, we will go to the structure of coronavirus, family structure, phylum, anything else. First of all, if we discuss here the family of coronavirus, the coronavirus family is Coronaviridae, and class of coronavirus is Acinetobacter actis, and the phylum of coronavirus is Isovaricot, and the kingdom of coronavirus is Orthonvirinae. So these are the family structure of coronavirus. Now we discuss the symptoms of coronavirus. The symptoms are divided into three parts. First part is most common symptoms, second part is less common symptoms, and the third part is serious common symptoms. So first of all, we discuss here most common symptoms. There are three most common symptoms of coronavirus. First one is fever, second one is dry cough, and third one is tiredness. Someone feels a lot of tiredness, feels temperature, dry cough. So it's the most common symptoms of coronavirus. Now at the second time, we discuss less common symptoms. These symptoms may vary from person to person. Some person have these symptoms, some not. So these symptoms include pain, sore throat, diarrhea,
loss of taste and smell. Someone loses his taste of smell, and also rashing on the skin is also less common problem. Discoloration of fingers, the color of fingers is changes, so this is also less common. So these are the less common symptoms. Now we discuss serious common symptoms. Which are the most serious symptoms of the coronavirus are, first one is difficult or shortness in breathing. Coronavirus patient may feel, if coronavirus patient feels severe shortness of breathing, so it's a serious symptom. If coronavirus patient feels chest pain or pressure on pain, so it's also very serious symptoms. And the third one is loss of speech and movement. In some cases the patient loses his or her speech, and the movement of the body remains difficult. So these are the symptoms of coronavirus. We have discussed most common one, less common, and serious common one. Now we come to the last point, that is called precautions. What are the precautionary measures to prevent from coronavirus? First of all, the first precaution is to wear mask. We should wear mask if we go outside from our home or outside to the office, shopping center, anywhere. Don't go out without mask. Second one is cleaning hand, which is the most important one. Don't shake hand to anyone and clean your hand always. Social distancing is also very important. Keep 4 to 5 meters away from other person. So this is called the social distancing. Don't touch eye, nose. Unintentionally, if you shake hand to anyone or you are touching any door, car door, anything else, so don't touch your hand, fingers to your eye, mouth, nose. Stay home if you feel unwell. If you are feeling these kind of symptoms, so stay home for 7 to 14 days. Cover your nose, mouth by elbow when sneezing. If suppose that if you are in a shopping center or you are somewhere else in a busy area and you have a sneezing, so put your elbow in front like this. You sneeze like this so that the other person may not affect. So this is the short introduction of coronavirus. Now I will introduce this coronavirus lecture in Urdu. डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेक्चर है कोरोना वायरस के ऊपर है, और आज के इस लेक्चर में कोरोना वायरस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उसके साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे, उसके आइडेंटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले ये कब इंट्रोड्यूस हुआ और इसको इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन थे, फिर उसके बाद उसकी टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, इसकी जनरेशन को हम डिस्कस करेंगे, इसके फैमिली को हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट टाइम में हम इसके सिम्टम्स और प्रिकॉशंस को डिस्कस करेंगे। अगर हम सबसे पहले देखा जाए कोरोना वायरस की आइडेंटिफिकेशन को, तो कोरोना वायरस को सबसे पहले 1965 में टायरल और बाइलोक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको डिस्कवर किया, और दे फाउंडेड इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक ट्रैकियल ऑर्गन। जो ह्यूमन एम्ब्रियोनिक ट्रैकियल ऑर्गन है उसमें सबसे पहले उन्होंने इसको कोरोना वायरस को पाया, और वो कोरोना वायरस भी किसी बर्ड या मैमल के जरिए शिफ्ट हुआ था। तो ग्रुप जो है इसका RNA है, बेसिकली जो वायरस का जो ग्रुप है वो RNA, ग्रुप ऑफ वायरसेस है।
अब इसके अगर सोर्सेज देखा जाए कोरोना वायरस के, तो इसके कोरोना वायरस के जो सोर्सेज में एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह आते हैं, जो मोस्ट प्रॉब्लम है। एनिमल्स में अगर देखा जाए तो बैट्स, कैमल, कैटल, ये जो मोस्ट कॉमन सोर्सेज है, उसको बैट को हम मोस्ट कॉमन सोर्सेज कंसिडर किया जाता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चाइना में ये हुआ रिसेंटली अभी, और आजकल भी इसके ऊपर चल रहा है, तो इसमें हमें प्रिकॉशंस को ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए उसका। अब यहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि कोरोना वायरस जो ओरिजिनेशन है, कोरोना वायरस जो ओरिजिनेट हुआ है, ये बैट से हुआ है, चमगादड़ जो है उससे हुआ है। वहाँ से फिर आगे चमगादड़ से इंसान में फैला है, फिर एक दूसरे से चेन बनती गई, और ये अभी थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है ना ये फैल गया। अब यहाँ भी अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस की दो टाइप्स हैं। एक पहली टाइप है उसको हम कहते हैं सार्स, और दूसरी को कहते हैं मर्स। जो सार्स है ना, सार्स एस निकला है सीवियर, ए निकला है एक्यूट, आर निकला है रेस्पिरेटरी, एस फॉर सिंड्रोम। तो SARS stand for severe acute respiratory syndrome. In this condition, patient feels difficulty to breathe. Second जो टाइम है उसको MERS कहते हैं, और MERS stand for Middle East Respiratory Syndrome, because सबसे पहले जो MERS है ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिडिल ईस्ट में सबसे पहले ये आया, दैट्स व्हाई इसको MERS कहते हैं, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी जनरेशंस को। जो कोरोना वायरस की जनरेशन है, 4 जनरेशन है कोरोना वायरस की, और इस जनरेशन में सबसे पहले ऊपर आता है अल्फा कोरोना वायरस, सेकंड नंबर पे आता है बीटा कोरोना वायरस, थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है गैमा कोरोना वायरस, और फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास आता है उसको हम कहते हैं डेल्टा कोरोना वायरस। अब इसमें जो पहली 2 जनरेशंस हैं, अल्फा कोरोना वायरस और बीटा कोरोना वायरस, ये इन्फेक्ट किसको करते हैं? मैमल्स को करते हैं, जैसे कैमल हो गया, कैटल हो गया, इन चीजों को। गैमा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस किनको इफेक्ट करते हैं? बर्ड्स को इन्फेक्ट करते हैं। अब साइज अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस का जो साइज है 120 डायामीटर है, और इसके वजन को अगर देखा जाए तो 40,000 kDa, किलो डाल्टन इसकी इकाई है, उसको हम बोलते हैं। और अगर इसकी फैमिलीज को हम कंसिडर करें कोरोना की, तो कोरोना की जो फैमिली है उसको कोरोना वायरिडी कहते हैं, और जो इसकी क्लास है आइसोनी वायरिसेक्स, और इसका जो फाइलम है उसको आइसोवायरिकोट कहते हैं, और जो किंगडम है इसकी ऑर्थोन वायरी इसको बोलते हैं। अब इसमें हम आ जाते हैं नेक्स्ट सिम्टम्स के ऊपर आ जाते हैं। सिम्टम्स में 3 तरह की सिम्टम्स होती है कोरोना की। सबसे पहले नंबर पे जो सिम्टम्स होती है उसको हम क्या कहते हैं? मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, वो आपको हर दूसरे बंदे में नजर आएंगी। दूसरे नंबर पे आती है लेस कॉमन सिम्टम्स, किसी में होंगी और किसी में नहीं होंगी। और थर्ड नंबर पे जो आएंगी उसको हम कहते हैं सीरियस कॉमन सिम्टम्स, जो सीरियसली होंगी, बड़े वो ऐसे मरीजों में कंफर्म होती है, कुछ उसको हम सीरियसली कंसिडर कर सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन है, अगर देखा जाए तो सबसे पहले फीवर है, बुखार होता है। सेकंड वन ड्राई कफ, खुश्क खांसी इसमें आएगी। टायर्डनेस, थकावट का बहुत ज़्यादा एहसास होगा। तो ये जो तीनों सिम्टम्स हैं ऊपर, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, ये आपको हर दूसरे बंदे में नजर आएंगे। उसके बाद अगर लेस कॉमन सिम्टम्स में हम आए, जो किसी में होंगी किसी में नहीं हुई, वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, किसी के होगा किसी को नहीं होगा। तो उसमें सबसे पहले पेन है, दर्द होगी जिस्म में, सॉर थ्रोट, गला खराब होगा, डायरिया है, लूज मोशंस वगैरह होंगे, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल, सूंघने की और टेस्ट करने की जो जायके की हिस्सा है वो खत्म हो जाएगी। रैशिंग ऑन स्किन, स्किन के ऊपर रैशेस पड़ जाएंगे, और कई केसेस में डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर्स, फिंगर के ऊपर जो कलर है वो क्या है, गायब हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब हम आ जाते हैं सीरियस कॉमन सिम्टम्स की तरफ, जो ऐसे सिम्टम्स
जो मोस्ट कॉमनली सीरियस सिम्टम्स जिनको समझा जाता है उसमें सबसे पहले है डिफिकल्टी और शॉर्टनेस इन ब्रीथ, या तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा हो, ठीक है, या अटक रहा हो सांस, इसको हम कह सकते हैं। चेस्ट पेन और प्रेशर, या तो चेस्ट के अंदर पेन हो और उसके ऊपर बहुत सारा दबाव फील हो, ये भी एक सीरियस सिम्टम्स में से है। लॉस ऑफ स्पीच एंड मूवमेंट्स, बास केसेस में क्या होता है कि पेशेंट कोरोना वायरस के इफेक्ट्स की वजह से बोलना उसको छोड़ देता है और उसकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती है सारी। तो ये जो 3 सिम्टम्स हैं, सांस की जो शॉर्टनेस होती है, चेस्ट के ऊपर पेन या प्रेशर होता है, और तीसरी चीज़ स्पीच का ख़त्म हो जाना और मूवमेंट का ख़त्म हो जाना, ये मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम्स है कोरोना वायरस के वजह से देखा जाए। अब अगर हम प्रिकॉशंस को देखें तो प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। इसमें प्रिकॉशंस में जैसे कि आजकल कोरोना वायरस के ऊपर चल रहा है, ऑलमोस्ट सारे को पता है इन प्रिकॉशंस का, लेकिन फिर भी रिवाइज करना ज़रूरी है ताकि याद दहानी हो जाए। तो सबसे पहले वियर मास्क, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी 5 से 6 लोग इकट्ठे हैं, बाहर शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, घर से बाहर निकलना पड़ जाता है, तो विदाउट मास्क आप कभी भी ना जाएं। क्लीन हैंड्स, अपने हाथ को हर 20 सेकंड के बाद धोएं, साबुन के साथ धोएं ताकि मिनिमम इफेक्ट्स जो है ना आए इसके। सोशल डिस्टेंसिंग, आपको बाहर जब भी निकलते हैं गैदरिंग में आप ना जाएं, जहाँ पे लोग ज़्यादा जमा है वहाँ पे ना जाएं, जस्ट एक फ्यू डिस्टेंस रखें 5 मीटर का, दिस इज कॉल्ड सोशल डिस्टेंसिंग। डोंट टच आइज, आप किसी के साथ गलती से अगर हाथ मिला लेते हैं या घर जाते हैं तो हाथ धोने से पहले कभी आप अपने आइज और नोज के करीब हाथ ना लेके जाएं। स्टे होम इफ फील अनवेल, और अगर किसी में कोरोना वायरस के ये सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए, अगर किसी में है खुदा न खास्ता ये सिम्टम्स, तो उसको परेशान नहीं होना चाहिए, उसको बल्कि क्या करना चाहिए, घर में अपने आप को क्वारंटाइन कर देना चाहिए फॉर 7 डेज और 10 डेज 14 डेज तक इसके सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कवर योर नोज माउथ बाय एल्बो व्हेन स्नीजिंग, और अगर आप कहीं बाहर हैं, शॉपिंग मॉल में हैं, इवन घर में हैं, किसी के पास बैठे हैं तो उसके दौरान आपको छींक आ जाती है, तो बजाय इसके कि आप छींके दूसरे के ऊपर वो नन्हे कतरे जो है ना पानी के गिरे तो उससे इफेक्ट और ज़्यादा हो, तो आप एल्बो को सामने रख के इस तरह छींकें ताकि उसका इफेक्ट दूसरों के ऊपर न जाए। तो ये बेसिकली हमारी क्या हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये कोरोना वायरस के ऊपर जो सिचुएशन चल रही थी, इस सिचुएशन के मुतालिक लास्ट टाइम भी जब सीज़न था मार्च फरवरी में, तो उस वक्त भी स्टूडेंट्स को अवेयर किया था, और अभी भी ये लेक्चर बेसिकली आपके सिलेबस का हिस्सा भी हो सकता है। इसमें ये सारी चीज़ें एग्जाम में भी आपके आ सकती हैं, ये ज़रूरी चीज़ें हैं ये सारी। तो इस कोरोना वायरस का जो लेक्चर है इसको आप गौर से इसको सुनिएगा, और फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह मज़ीद आगे आने वाले दिनों में इसके ऊपर मज़ीद आगे करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।